میں ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ویکینڈ کے اوپر یہاں پر تشریف لائیں۔ بہت دن سے بہت ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے ہر طرف، تو میں نے سوچا اس ہنگامے میں ہر ایک کی آواز گونج رہی ہے، لیکن عوام کی آواز کہیں سنائی نہیں دے رہی۔ اور عوام کی آواز اگر آپ سوچیں تو میں آپ کے سامنے وہ بات پیش کرنا چاہوں گا جو وزیر اعظم کے گمان میں، وہ کیا خاکہ ہے جس کی طرف وزیر اعظم لے جانا چاہتے ہیں، جلا دو، مار دو، اڑا دو، یہ تو آپ روز سن رہے ہیں، یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو کوئی بات ہوگی۔ اگر سرکار بیٹھی ہے، کام کر رہی ہے، تو کوئی ایک خاکہ آپ کے پاس یہ بھی تو آنا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے جس پہ کام ہو رہا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو آج بتاؤں کہ آپ نے بہت سی پریس کانفرنسز سنی ہوں گی، ہمارا ڈیفیسٹ اتنا ہو گیا، ہمارا سرپلس اتنا ہو گیا، ہمارا فسکل کو یہ ہو گیا، ہمارے ٹیکس کو یہ ہو گیا۔ وزیر اعظم کے ذہن کے اندر صرف تین چیزیں، پہلی کہ اس ملک میں روزگار مہیا کرنا ہے۔ آپ کے ہمارے سب کے جوان بچے ہیں، ان بچوں کو روزگار چاہیے، ان کے ماں باپ بڑی محنت سے انہیں پالتے ہیں، اسکول بھیجتے ہیں، کالج بھیجتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، باہر نکل کے کہاں جا، تو روزگار چاہیے نا۔ تو وزیر اعظم کے ذہن کے اندر نہ فسکل ہے نہ کرنٹ ہے، وہ روزگار ہے جو غریب بچے کو ملنا ہے، جوان بچے بچی کو ملنا ہے۔ دوسری جو چیز وزیر اعظم صاحب کے گمان میں ہے وہ یہ کہ ایک بوجھ ہے۔ اب چھوڑ دیں اس بات کو کہ کس حکومت نے کیا کیا، آپ سب کو معلوم ہے، عوام کو معلوم ہے کہ کس کس نے کیا کیا کیا، لیکن اس کے نتیجے میں ایک مہنگائی کا بوجھ تو لوگوں پہ پڑا ہے نا۔ تو اس مہنگائی کو تو ختم کرنا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس مہنگائی کو ختم کرنا ہے۔ روزگار نمبر ایک، مہنگائی نمبر دو، اور تیسری کہ اس دوڑ میں، زندہ رہنے کی دوڑ میں، کچھ علاقے پیچھے رہ گئے اور کچھ لوگ پیچھے رہ گئے۔ تو وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں، وہ لوگ جو غریب ہیں، وہ خطے جو اس دوڑ میں، ترقی کی دوڑ میں پوری طرح سے شامل نہیں ہو سکے، ان خطوں کا کیا کرنا ہے؟ اس سے زیادہ بڑھ کر، کہیں درجہ زیادہ بڑھ کر ان لوگوں کا کیا کرنا ہے جو غریب رہ گئے ہیں۔ تو وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ اس ملک سے غربت ختم ہو، وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں روزگار ہو، اور وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ مہنگائی کا بھوت اور مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ لوگوں کی کمر سے اترے۔ بس باقی فسکل ہے، کرنٹ ہے، ایکسٹرنل ہے، انٹرنل ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، یہاں کے دھرنے ہیں، یہ سب باتیں صرف اس لیے ہیں اگر یہ تین چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ پوری ہو سکے۔ بس اب خواب تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، بھائی اگر اجازت دیں 1 منٹ، آپ کی مہربانی ہو۔ خواب تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، تو خواب تو اس سے پہلے بھی پیش ہوتے رہے نا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں بھی خواب پیش ہوتے رہے۔ خواب تو حضرت علی نے بھی دیکھا، مگر خارجیوں نے کیا کیا بتائیے؟ کوئی ہے یہاں پر جسے یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فساد کروایا، ہزاروں لاکھوں شہید کروا دیے، خلافت کو تباہ کر دیا۔ آج تک ابھی محرم کا سوگ چل رہا ہے، آج تک پوری جو ہماری امہ ہے وہ سوگوار ہے، ماتم گیر ہے، مگر کسی نے یہ پوچھا کہ وہ کروانے والے کون تھے؟ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ ان خارجیوں سے پوچھا کہ یہ جو آج جو بچے ہیں، یہ ان پہ جو بیت رہی ہے، یہ ان پہ کیوں بیت رہی ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو خوارج کے حملے چل رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ چاہتے کیا؟ آپ سب جانتے ہیں، عوام بھی جانتی ہے۔ آج تک کوئی آپ نے سولوشن سنا ہے؟ کسی کے منہ سے یہ سنا ہے کہ کیسے بھوک کو ختم کریں گے، کیسے مہنگائی کا بوجھ اتاریں گے؟ نہیں۔ کیا سنا ہے؟ آگ لگا دیں گے، جلا دیں گے، اندر نہیں آنے دیں گے، دھرنا دیں گے، ٹھوکریں ماریں۔ ارے کس کو ٹھوکریں ماریں گے؟ اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کے مستقبل کو۔
کس کو ٹھوکرے مارنے کا کہہ رہے ہیں؟ کس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں؟ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہانی تو میں نے آپ کو سنا دی، خواب بھی دکھا دیا، خواب کو برباد کرنے والے بھی دکھا دیے، خوارج کا یا خارجین کا ذکر بھی کر دیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ ہمارے وقت کے یہ خوارج کون ہے۔ تو بھائی کپتان نے کہا فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے، تو چیلوں نے کہا لبیک، واہ واہ، فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے۔ پھر کپتان نے کہا لیکن نیوٹرل تو جانور ہے، تو چیلوں نے کہا واہ واہ، نیوٹرل تو جانور ہے۔ کپتان نے کہا کہ چیف تو باپ ہوتا ہے، تو چیلوں نے کہا واہ، چیف تو باپ ہوتا ہے۔ پھر کپتان نے کہا باپ تو میر جعفر ہے، تو چیلوں نے کہا لبیک لبیک، واہ واہ، یہ بات تو ٹھیک ہوئی کہ باپ تو میر جعفر ہے۔ باپ کون ہے؟ میر جعفر۔ پھر کپتان نے کہا امریکہ سازش کر رہا ہے، فوج ہمیں بچائے۔ یاد ہے نا آپ کو؟ سب کو یاد ہے نا یہاں پہ بیٹھے لوگوں کو کہ امریکہ سازش کر رہا ہے، سائفر لہرایا اور فوج ہمیں بچائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ امریکہ تو سازشی ہے، ہمارے ملک کے خلاف ہے، ہمارے ملک کے خلاف اس نے اعلان جنگ کیا ہے، ہمارے آئین کو پامال کیا ہے، ہماری پارلیمان کو پامال کیا ہے، فوج ہمیں بچائے۔ پھر کہا کپتان نے کہ فوج ہمیں برباد کر رہی ہے، امریکہ بچا۔ تو لوگوں نے کہا ہاں، آپ نے دیکھا انہوں نے ریزولوشن پاس کی امریکہ نے، اور ہر جگہ ڈنکا بجایا گیا اس کا کہ فوج ہمیں برباد کر رہی، کون بچائے؟ امریکہ بچائے۔ پھر کپتان نے کہا کہ اس اسٹیبلشمنٹ کا قبر تک پیچھا کریں گے، قبر تک پیچھا کریں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ لوگوں نے کہا چھوڑیں گے نہیں، 9 مئی کر دیں گے، آگ لگا دیں گے۔ ان جوانوں نے جن نے آپ کے بچوں کے لیے شہادتیں لی، ان کے مجسمے اٹھا اٹھا کے ماریں گے، آگ لگا دیں گے، بالکل 9 مئی کر دیں گے۔ اور ابھی مان بھی گئے، ابھی آپ نے انہوں نے دیکھا، انہوں نے بھی بیان دیا کہ ہاں میں نے کہا تھا کہ ذرا ہلا گلا تھوڑا سا ہی آپ کے سامنے آ گیا، 9 مئی کا ہلا گلا۔ کپتان مانا کہ میں نے کہا تھا۔ تو کپتان نے کہا کہ قبر تک پیچھا کریں گے۔ پھر قبریں کھودنی شروع کر دی، اور لوگوں نے کہا کھودو قبریں۔ اب کپتان کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، پی ایم ایل این ہماری لڑائی کروا رہی ہے۔ بھائی یہ دیوانے ہیں، یہ پاگل ہیں یا بہروپی ہیں؟ آپ مجھے بتائیے، یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور اس میں بے شمار ہیں، یو ٹرن لینے والا لیڈر ہوتا ہے، یو ٹرن لینے والا جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ تمام گفتگو آپ کے سامنے، امریکہ کے متعلق، فرانس کے صدر کے متعلق، وہ ترکی کے متعلق، وہ پتہ نہیں کو ٹیلی ویژن بنانے چلے تھے، ہمارے حلیف ممالک جو ہماری جان سے زیادہ ہمیں عزیز ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، جی سی سی کے ممالک، ان کے متعلق میں آپ کو کیا کیا بتاؤں۔ سوال میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بہروپیے ہیں یا پاگل ہیں؟ اور اگر بہروپیے ہیں تو ہم کیا کریں، اور اگر پاگل ہیں تو ہم کیا کریں؟ کسی بات پہ پیر لگا کے کھڑے تو ہوں تو بات آگے چلے، مگر مقصد جب صرف ملک کو برباد کرنا ہو، مقصد بات کرنا نہ ہو، برباد کرنا ہو، تو پھر آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں۔ جب کوئی شخص مصر ہو، آپ نے وہ ٹرینڈ دیکھا تھا نا جو پچھلے دنوں چلا تھا کہ کپتان نہیں تو پاکستان نہیں۔ ارے یار کوئی شرم و حیا کرو، ارے پاکستان ہے تو ہم نے، یہ جو میں آج یہاں بیٹھا ہوں یہ پاکستان ہے، یا آپ جو آج صحافی ہیں یہ پاکستان ہے، یا آج جو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، محنت کش ہیں، کسان ہیں، یہ پاکستان ہے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، کپتان نہیں تو پاکستان نہیں۔ تو یہ انہوں نے ایک واضح اسٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم ملک تباہ کر دیں گے، ملک تباہ کر دیں گے، اور کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ ہم نے کیا کیا؟ پچھلے سال کھانے پینے کی اشیاء کی جو مہنگائی کی شرح تھی 48% تھی، 48%۔ کھانے پینے کی اشیاء میں مہنگائی کی شرح پچھلے سال 48% تھی، اس مہینے 2% ہے۔ یہ ہم نے کیا۔ ان نے کیا کیا؟ دھرنا دیا۔ ہم مہنگائی کی شرح کو 48 سے 2 پہ لائے، ان نے دھرنا دیا۔ اوور آل جو مہنگائی کی شرح ہے، جو اوور آل جس کو آپ انڈیکس کہتے ہیں سی پی آئی کی،
وہ 38% تھی پچھلے سال، 38%، ابھی 12% ہے۔ ہم نے تو یہ کیا، آپ نے کیا کیا؟ پارلیمان پہ حملہ کیا، کرین لگا کے دیوار توڑی، پارلیمان پہ حملہ کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو اس بجٹ میں بسٹ کے لیے، غریب لوگوں کے لیے 600 ارب روپے مختص کیے، 600 ارب روپے، اس بے حالی میں بھی، اس تنگی میں بھی غریب لوگوں کے لیے 600 ارب روپے مختص کیے۔ آپ نے کیا کیا؟ $4,000 ملین، $4 بلین، $4,000 ملین آپ نے صرف 100 سرمایہ داروں کو اور سیٹھوں کو دے دیے۔ آپ کو یاد ہے نا وہ کیا تھا پروگرام بھلا سا اسٹیٹ بینک کا؟ کیا میرے ذہن میں نہیں آ رہا؟ ہاں، کووڈ کے بعد جو لے کر آئے، غریبوں کے لیے پیسے مانگے اور 100 سیٹھوں کو $4,000 ملین، $4 بلین دے دیے۔ یہ کیا آپ نے۔ ہم نے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ترقی کے اندر یکسانیت ہونی چاہیے، تو ہمیں پی ایس ڈی بی کے اندر ترقی کے وہ منصوبے رکھنے چاہیے جس میں وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے، جہاں گلی میں کچھ چیز نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، ہسپتال نہیں ہے، گلی نہیں ہے، روڈ نہیں ہے، پورٹ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ان چیزوں کو بڑھانے کے لیے ڈیمز کے لیے پیسے رکھے، سڑکوں کے لیے پیسے رکھے۔ اور سڑک کا جادو کیا ہے؟ سڑک کا جادو یہ ہے کہ جہاں سے گزرتی ہے وہاں پہ روزگار لے جاتی ہے۔ تو بلوچستان جائے گی تو کیا ہوگا؟ یہاں سے لوگ تو نہیں جائیں گے، بلوچی جو بلوچ غیور بلوچ جو ہیں ان کو ملے گی نوکری۔ ڈیم کہاں بنتا ہے؟ پہاڑوں میں بنتا ہے، کے پی میں بنتا ہے، گلگت بلتستان میں بنتا ہے۔ جب ڈیم بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے لوگ تو نہیں جاتے، وہاں کے لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ تو جو چیز آپ کو ڈیم لگتی ہے وہ بھی روزگار ہے، جو آپ کو سڑک لگتی ہے وہ بھی روزگار ہے، اور روزگار ان لوگوں کے لیے ہے جو غریب ہیں، اور ترقی اس جگہ پہ ہے جہاں پہ آج تک نہیں ہوئی۔ ہم نے تو یہ کیا، آپ نے کیا کیا؟ سپریم کورٹ کے اوپر گندی شلواریں ٹانگی، یہ کیا۔ تو ہم نے تو بھائی 86% بجلی کا اس وقت بحران ہے، میں مانتا ہوں بہت زیادہ بوجھ، اور یہ کم ہوگا، یہ ختم ہوگا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ۔ لیکن ہم نے ابھی کیا کیا؟ ہم نے 86% جو گھر ہیں، 86%، یعنی 100 میں سے 86 گھر جو ہیں، پی ایس ڈی پی سے پیسہ نکال کے ان کے بجلی کے جو بل تھے وہ پچھلے سال کے برابر کے اندر فکس کر دیے۔ اور ابھی جو بل آئیں گے، اس مہینے نہیں، اگلے مہینے جو بل آئیں گے آپ کو یہ نظر آئے گا۔ 86%، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 75 نہیں، 86% پاکستان کے جو گھر ہیں، غریبوں کے گھر، ان کو پروٹیکٹ کیا گیا، اور پی ایس ڈی پی سے پیسے نکال کے وہ جس غریب کی امانت تھے اس غریب کے حوالے کیا گیا۔ اور کرنا پڑے گا اور کریں گے، اور کرنا پڑے گا اور کریں گے، جب تک کرنا پڑے گا تب تک کریں گے، مگر غریب کو سہولت دیں گے، اس بوجھ کو ختم بھی کریں گے، مگر درمیان میں لوگوں کو سہولت بھی دیتے چلے جائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو ختم کریں۔ ارے بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو ختم کریں، آپ کہتے ہیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ تو کیا ہونے دیں گے؟ بھتہ خوری ہونے دیں گے، دہشت گردی ہونے دیں گے؟ مساجد اور جو مذہبی ہمارے جو وہ ہیں جہاں پہ لوگ عقیدت کے لیے جاتے ہیں، ہمارے بزرگوں کی جہاں پہ قبریں ہیں، ان کے اوپر بھٹ سے 60 لوگوں کو اڑنے دیں گے؟ اپنے بچے اغوا ہونے دیں گے؟ خواتین کو جانوروں کی طرح بند کر دیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ ہم مانتے، ہم کہتے دہشت گردی ختم کریں گے، آپ بھی تو کچھ بتائیں۔ آپریشن نہیں ہونے دیں گے تو کیا ہونے دیں گے؟ اس چیز کا نام کیا ہے جو آپ ہونے دیں گے؟ کیونکہ جب آپ کہیں گے آپریشن نہیں ہونے دیں گے اور کچھ نہیں بتائیں گے کہ کیا ہونے دیں گے، تو پھر دہشت گردی ہونے دیں گے، پھر بھتہ خوری ہونے دیں گے، پھر عورتوں کو بند کریں گے، پھر بچوں کو اغوا کروائیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کریں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں بات کریں، آپ کہتے ہیں دھرنا دیں گے۔ ہم کہتے ہیں بات کریں، آپ کہتے ہیں دھرنا کریں۔ بات کریں یا دھرنا کریں؟ ہم کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھیں سلجھائیں، آپ کہتے ہیں ملک گیر پہیا جام کریں۔ میں پوچھتا ہوں کس کا پہیا جام کریں؟
तरक्की का पहिया जाम करेंगे, खुशहाली का पहिया जाम करेंगे, रोजगार का पहिया जाम करेंगे, किस चीज का पहिया जाम करेंगे? तो भाई बात करो, बर्बाद नहीं, बात करो, बर्बाद मत करो, सुलझाओ, उलझाओ मत। क्योंकि ये याद रहे, और मैंने आपको आज तारीखी भी हवाला दिया खारजी का, याद रहे कि आज जो आप उद्यम मचा रहे हैं, ये उद्यम आप अपने बच्चों की जिंदगियों में मचा रहे हैं। अगर आप पहिया जाम करेंगे तो उस मुस्तकबिल का करेंगे जो आपके बच्चों का है। अगर आप बर्बाद करेंगे तो अपनी फ्यूचर नस्लों को करेंगे। हमें हटाना, हटा दे। हम तो पहले आपको कह रहे थे, आप कहते आपकी ज्यादा सीटें आए, क्यों नहीं लिया आपने? जब हमने आपको कहा कि आए, आप कहते हैं आपकी ज्यादा सीटें हैं तो हुकूमत बनाए, तो क्यों नहीं बनाई? क्योंकि हुकूमत बनाना जो है वो मरकज नहीं था। जब पीपल्स पार्टी ने कहा आए हम आपकी सपोर्ट करते हैं, तो क्यों सपोर्ट लेके हुकूमत नहीं बनाई? क्योंकि सुलझाना आपका मकसद नहीं था, उलझाना था मकसद, फसाद मचाना था मकसद। तो मत करें। हम दोबारा आपसे कहते हैं, आइए बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अभी बात की है और कहा कि एक पार्टी के काफी लोग बहलुए हैं, पागल हैं। ये सारी बातों की सर इस तरह ही बातें होती रही है। वोट को इज्जत दो भी कहते रहे, फिर आप सुबह मिलेगी हुकूमत भी देते हैं, उससे पहले भी बातें होती रही। और दूसरा क्या, इस मुल्क में दो कानून है। कल पीटीआई को इजाजत नहीं दी गई, और जो मरकज से इंसाफ मांगे आए थे उनको पिंडी में जहाँ 144 नाफज है वहां पे इजाजत दे दी गई है, और FIR नंबर 2036 जो है वो पीटीआई के खिलाफ काट दी गई है। क्या होगा? देखिए, बात हो ये रहा है, आपके सामने 9 मई, आप मुझे बता दें कि 9 मई को क्या हुआ। आपके सामने है ना ये हालात। मैं कोई आपसे ये तो मफरूजे में तो बात नहीं कर रहा हूं। वो लोग जो आपके सामने आपके शहीदों को, मुजस्समों को जलाते रहे हैं, जहाजों को आग लगाई उन्होंने, हमला किया कोर कमांडर के घर पे, वर्दी को छोटी के ऊपर टांगा, ये वो लोग हैं जिन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं आपके साथ इंगेज करना चाहता हूं, अपना प्रोटेस्ट जो है वो करना चाहता हूं, तो हम तो हाजिर, जगह भी देते हैं, इजाजत भी देते हैं, बात भी करते हैं। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें भी हम ये कह रहे हैं कि आइए बात करें। अभी जो मैंने आपको पैगाम दिया यही पैगाम है भाई, उनके लिए भी तो यही पैगाम चलता रहा है। जवाब तो आपने सुन ही लिया ना। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको ये उलझाव और सुलझाव के दरमियान में कुछ तफरीका, कुछ तफरीक करनी होगी, वरना ये मुल्क ऐसे चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। यासर जुबैरी साहब, सर मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो मेरा जो है कि अच्छी बात है कि रिमोट एरिया में यहाँ पर सहूलियात नहीं है, वहाँ पर आप सहूलियात देने के लिए जा रहे हो, प्लान कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि जो तस्वीर है वो अपने घर से शुरू करनी चाहिए। वफाक के अंदर हेल्थ के 2 बड़े अस्पताल हैं, पॉलीक्लिनिक और किम्स, उनके जो हालात हैं वो अगर कोई जाके देखे तो कानों को हाथ। ठीक है। दूसरा, इसके ऊपर जो है वो कोई सोच विचार जो है वो हुकूमत कर रही है कि जी अपने वफाक के अंदर जो अस्पताल है उनको ठीक करना है, नहीं करना, PSDP का बजट तो इसके लिए आए। दूसरा सवाल आपने कहा कि जी नौकरियां जो है वो हम देंगे, तो PTI की हुकूमत जब थी उन्होंने तो 1 करोड़ नौकरियों का जो है वो दावा किया। तो मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो कितनी नौकरियों का दावा करे? देखिए, दावा तो नहीं किसी करोड़, लाख करोड़, 10 करोड़ का वादा तो नहीं किया, तरीकाकार आपके सामने रख दिया। ये नहीं कहा करेंगे, फिर नहीं बताया क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मैंने तो आपको बताया कैसे करेंगे। और अगर किसी जगह पे आप $1 बिलियन अगर दासू में लगाएंगे, और आपको पता है दासू कहाँ है, वो तरक्की याफ्ता इलाका तो नहीं है ना, तो दासू के अंदर अगर $1 बिलियन लगेगा, $1 बिलियन से पूरा शहर आबाद हो जाता है, पूरा शहर आबाद हो जाता है, 1000 मिलियन डॉलर। तो अगर वहां पे दासू में, उस इलाके में ये काम होगा तो क्या होगा, कहां से लोग जाएंगे? मैंने आपको तरीका बता दिया।
अब आप वहां पे जाके लोग गिन लें और $1 बिलियन गिन लें तो आपको पता चल जाएगा कितनी नौकरियां आएंगी। मैंने आपको भाषा का जिक्र किया, भाषा के अंदर हमने लैंड एक्वायर की है, वहां पे काम शुरू कर रहे हैं, उसके लिए पैसे मुख्तस किए गए। अगर भाषा में काम होगा तो भाषा कहाँ है? कराची में तो नहीं है, लाहौर में भी नहीं, हैदराबाद में भी नहीं, पेशावर में भी नहीं, कोयटा में भी नहीं। तो जहां पे भाषा है भाई वहीं पे नौकरी जाएगी ना। वहां पे कौन लोग रहते? गरीब लोग रहते, पहाड़ों में रहने वाले लोग रहते, तो वहां पे नौकरियां पैदा होंगी। ये जो आपको मैंने पीएचडी का प्लान दिया और आपको सड़कों का जाल बुनने को कहा है, क्या होगा? सड़क रेंगती चली जाएगी, जिस गांव से गुजरेगी वहां पे नौकरी देनी होगी। मैंने आपको ये नहीं कहा 1 करोड़ देंगे, कैसे देंगे? फिर आखिर में कहा कि वो बिलियन ट्री थी, मिलियन ट्री, बिलियन, 1 बिलियन ट्री सुनामी थी। आखिर में जब पूछा हिसाब ने तो उन्होंने बोला हमने हेलीकॉप्टर से बीज फेंक दिए थे। ये था तरीकाकार बिलियन ट्री सुनामी का कि हमने हेलीकॉप्टर से बीज फेंक दिए तो जरूर उग गए होंगे। मैंने आपको ये नहीं कहा कि जरूर उग गए होंगे, जरूर नौकरियां आ गई होंगी। मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है, इलाके बता दिए हैं, लोकेशंस बता दी हैं, आप जाके वहां के लोग गिन लें, उनको रोजगार मिलेगा। शकील साहब समाप्त है। दूसरा सवाल मेरा हेल्थ का दूसरा सवाल मेरा जो है वो कैपिटल के हॉस्पिटल्स का। हाँ, देखिए इस वक्त हो क्या रहा है, दिन में 4-4 मीटिंग्स हो रही हैं, ठीक है, प्लान बन रहा है, ये बिल्कुल ठीक होंगे, अस्पताल में आपसे वादा करता हूँ ठीक होंगे। एफबीआर, वजीर आजम कहते हैं मैं सर काट के फेंक दूंगा और एफबीआर को सीधा करूंगा, उसको डिजिटाइज कर रहे हैं। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस प्राइवेटाइज होंगे, कुछ भी हो जाए प्राइवेटाइज होंगी, हमारी हुकूमत नहीं भी रहेगी तो प्राइवेटाइज होंगी। यानी वो चीजें जो एक गरीब आदमी पे बोझ हैं उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें आपका भी जो ये है मुकदमा, इसका प्लान बहुत जल्द वजारत आपके सामने लेकर आएगी, उस पर काम हो रहा है, वजीर आजम की हिदायत है, वो एक प्लान बना रहे हैं। और ये आपकी बात ठीक है कि इन्हें तो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, लेकिन जो चीजें हमारी फेडरल हुकूमत की जुरिस्डिक्शन में, उनको इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे आगे बढ़ाने की और बेहतर करने की। शकील साहब समाप्त। सॉरी मलिक साहब, 12% इन्फ्लेशन का नंबर दे रहे हैं, कार्ड में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप एक्चुअली देखें जाकर मार्केट के अंदर तो इन्फ्लेशन कहीं ज्यादा है। सरकारी नंबर ठीक है, आप कह रहे हैं तो मार्केट में, लेकिन हकीकत में इन्फ्लेशन ज्यादा है। दूसरा, पेट्रोलियम की प्राइसेस 70 ऊपर जा रही हैं, बिजली के बिल लोग आउट ऑफ कंट्रोल, लोग नहीं दे पा रहे, खुदकुशियां कर रहे हैं। क्या जमात इस्लामी का जो धरना है या प्रोटेस्ट है, क्या उनके मुताबिक मानेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि बिजली की कीमतों में कमी के बगैर हम नहीं उठेंगे, और आईपीसी के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं उस पर नजरसानी की जाए। क्या ये दोनों चीजें जो है वो प्रैक्टिकल पॉसिबल हैं, या हालात ज्यादा खराब होंगे तो फिर आप उनको उनके साथ डील करेंगे या मुज़ाकरात की दावत देंगे? देखिए, अब मैं आपके सामने 2 चीजें कहूंगा, 2 नहीं माने, आपके जो जी में आता है मान, 2 ना माने। 2% मैंने कहा ना कि खाने पीने की अशिया में मैंने कहा आपको कि महंगाई की शरह 2% होगी, आपने कहा हम नहीं मानते, मैंने कहा ठीक है, मैं भी नहीं मानता, रहने दें। आप मुझे बताएं कि पिछले साल खाने पीने की चीजों में महंगाई की शरह थी जो, वो वही है अब? ये है फंडामेंटल सवाल। चले 2 नहीं है, 3 है, चले 38 नहीं था उसे 50 था, मगर जो असल बात मैं आपके सामने कह रहा हूं कि जो चीज पिछले साल 40-48% थी, उस वक्त भी तो सरकार ने गिनी थी ना, उस वक्त भी गिनती 48% की सरकार की थी। तो मान लें उस वक्त 60 थी और 48 रिपोर्ट की गई, और मान लें कि आज 6 है और 2 रिपोर्ट की जा रही है, मगर फर्क 60 और 6 में आपको नजर आ रहा है ना, या 40 और 2 में आपको नजर आ रहा है ना। तो वाहिद चीज जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो है कि आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज महंगाई की शरह में कमी आ रही। दैट्स इट। सिर्फ ये मुकदमा मैं आपके सामने रख रहा हूं। आईपीपीज का मेरे क्योंकि इस वक्त वो डायरेक्टली मैं उससे डील नहीं करता, उसको ऊपर मेरे ख्याल में हमारे जो वजीर हैं उन्होंने बेशुमार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो लोग कह रहे हैं आईपीपीज का या जिन रिपोर्ट्स का जिक्र कर किया जा रहा है, वो तो 8-9 महीने थे तो कर जाते भाई, इतना आसान था तो कर जाते ना भाई। आज मुकदमा जो आप दायर करते हैं तो पहले करके चले जाते, मसला क्या था? इसकी वजह ये है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको देखभाल के चलना पड़ता है, वो भी देखभाल के चले, सही चले, हम भी देखभाल के चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, और इंशाल्लाह इस मामले को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसका तरीकाकार क्या होगा वो अवैस लकारी साहब आपके सामने इंशाल्लाह जैसे ही वापस आते हैं वो आपके सामने पेश करेंगे। इस पे काम हो रहा है, हर बंदा अच्छी नीयत से कह रहा है, हमारे जो पुराने गुजरे हुए वजीर हैं वो भी अच्छी नीयत से ये बात कर रहे हैं, जो जमात इस्लामी धरना का कह रही है वो भी अच्छी नीयत से कह रही है, और हम जो कोशिशें कर रहे हैं वो भी अच्छी नीयत से कर रहे हैं, मगर इंशाल्लाह सोल्यूशन देंगे। मगर एक बात आपको याद रहे, बिल आते गर्मियों में,
3 महीने के लिए 50 अरब रुपए 86% हाउस होल्ड, इस पाकिस्तान के हर 100 में से 86 घर जो हैं उनका बिल की शरह जो है वो पिछले साल की शरह पे कैद कर दी गई, और उसका जो फर्क है 50-60 अरब का या जितना भी 50 है मेरे ख्याल में, वो पीएचडीपी से निकाल के हवाले कर दिया गया है बिजली के महकमे के। तो लोगों के ऊपर इजाफी 86% लोगों के ऊपर इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। आमर सियाल साहब स्लो से। सर ये जो आपने बातें की ना कि हुकूमत रोजगार के लिए कोशिश कर रही है, महंगाई में कमी की बात कर रही है, लेकिन सर ये जो प्रैक्टिकली जो है ना वो कुछ सिचुएशन कुछ हो रहा है कि हमें जैसे कि जो बिजनेस कम्युनिटी है वो गवर्नमेंट से सबसे ज्यादा बंद है, और बिजनेस कम्युनिटी इस टाइम आईपीपी के खिलाफ लीड कर रही है, और इवन उन्हीं के तो आईपीपी जी वो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट से वो कह रहे हैं हमारे मुजाकरात गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मान रही, रिलीफ नहीं दे रही, इस पर टैक्स भी लिया जा रहा है, कैपेसिटी चार्जेस भी लिए जा रहे हैं, और वो कोर्ट में जा रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत जो मकामी गैस है वो शिफ्ट घरेलू सार्फिन के बजाय वो आप देने लगी है सनती शो पे, घरेलू सार्फिन को शिफ्ट किया जा रहा है LNG, तो उनका टैरिफ तो जो है मजीद बढ़ जाएगा, इसकी आप क्या कहते हैं? भाई पहली बात तो क्या हुआ, मैं बात करूँ ये या कोई जरूरी कोई इमरजेंसी जी बताइए क्या है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इमरजेंसी नहीं। देखिए क्या सवाल था आपका? सर मेरा ये सवाल है कि घरेलू सार्फिन हाँ नहीं, मैं यहाँ पर वजीर हूँ पेट्रोलियम का, मुझे ये बात नहीं पता जो आप कह रहे हैं। मैंने कोई फैसला नहीं किया कि LNG दी जा रही है और बाकी गैस छीनी जा रही है। अगर किसी ने किया है फैसला तो उसको मेरे सामने ले आए ताकि जरा बात दू बदू हो जाए। अभी आप जो बात कह रहे हैं किसने कही आपको, उसको कहे ना जरा मेरे सामने आके बैठे और जरा मुझे बताए कि ये हम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो किसी ने नहीं, ना मुझे वजीर आजम ने कहा है भाई, ना ये मेरा फैसला है। हम तमाम गैस को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव एलोकेशन कैसे करें, घरेलू सार्फिन को कैसे बचाएं। पिछली दफा आप लोगों की मुशावरत से और आप लोगों की सपोर्ट से, आपको याद है कि अमीर और गरीब का टैरिफ हमने अलग किया था, आपको याद है ना जी, और 66% लोग जो है उनका टैरिफ फ्रीज कर दिया था। तो इस दफा भी हम कुछ ऐसी ही बात करेंगे। अभी हमने नई आपको गैस की जो टैरिफ दिया है उसमें 1 पैसे का भी इजाफा नहीं किया, 1 पैसे का भी इजाफा नहीं किया। यानी आप कह रहे हैं इतनी महंगाई हो गई, आप कह रहे हैं 60% महंगाई हो गई, आप कह रहे हैं 40% महंगाई हो गई, तो 40% गैस की भी तो प्राइस बढ़नी चाहिए थी ना। तो नहीं बढ़ने दी, आपकी नहीं बढ़ने दी, मैंने खुद टैरिफ देखा है। तो इस दफा कोई बोझ नहीं डाला गैस का। तो ये जो आप बात सर, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, हाजिर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो फारिग आदमी हूँ, आप जब तक बिठाएंगे मैं बैठा रहूँगा। तो भाईजान जो भी आपको ये LNG वाली कह रहे हैं, LNG के हमने कनेक्शंस देने, अगर हमारे पास LNG सरप्लस है और लोगों को गैस की जरूरत है और किसी वक्त हुकूमती पॉलिसी बदलती है, इस वक्त तो LNG के कनेक्शंस पे बैन। अगर कोई हुकूमती पॉलिसी बदलती है तो पहले आपको मैं बताऊंगा, आप लोग आते हैं, अभी बल्कि कोताही हो गई, 1-2 महीने हो गए हमारी गुफ्तगू नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई। आप लोग आएंगे, मैं आपके सामने सारी केस रखूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या इसके मुहर्रकात हैं, इसमें किसको फायदा है किसको नुकसान है, और फिर इंशाल्लाह हम फैसला करेंगे। कोई ऐसा फैसला भी नहीं हुआ। शुएब निजामी मैं साहब इसी को बात करना चाह रहे हैं। बिजली के बिलों के हवाले से 6% दबाव है जी 86 नहीं डाला नहीं। अभी जो फैसला हुआ है, मैं बात वाज़ेह कर लूँ, इस महीने से, क्योंकि इसके बिल अगले महीने आएंगे, क्योंकि अभी आप जो बिल दे रहे हैं पिछले महीने के, इस महीने से शुरू करके 3 महीने के लिए पिछले साल के जो टैरिफ थे, जो टैरिफ इंक्रीज आई है, उसकी कीमत बनती थी, यानी अगर वो टैरिफ ना बढ़ाया जाए तो 50 अरब रुपए की कीमत बनती थी। वो वजीर आजम ने कहा है कि वो सरकार देगी, हुकूमत देगी, हम पीएचडीपी में से देंगे, और बिजली की जो इजाफत हो रही थी उसको नहीं होने देंगे। 3 महीने गर्मियों के जो है उसके लिए, उसके बाद दोबारा कमेटी बैठेगी और फिर हम फैसला करेंगे क्या करें। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड, कितने यूनिट्स हैं आपके? जी आप नहीं चेक करें, इस पे लिखे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आप 200 से ज्यादा 200 यूनिट तक, ये मैं आप आवाम को भी बताना चाहता हूँ, 200 यूनिट तक मुल्क के 86% लोग, इस मुल्क में अमीर और गरीब लोग रहते हैं, अगर आप मान लें कि मुल्क के 90% लोग गरीब हैं,
90 से ज्यादा तो नहीं हो सकते ना भाई, सेठ भी तो हैं, इतने आप गिनते हैं, रोज उनकी बातें करते हैं, मुझसे उनके सवाल पूछते हैं, तो सेठ भी तो हैं। तो 86% पाकिस्तान के लोग जो हैं वो 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं। मगर अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने तो एसी भी चलाना और मेरा बिल कम आए, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। शोएब इस निजामी वजह से नहीं भाई, ये जरूरी बात है। शोएब निजामी साहब से तो मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ बैठ जाऊंगा, मुझे बात तो कर लेने दें यार, आप भी ब्यूरोक्रेट है मेरी तरह बहुत बड़े। आप क्या चाहते हैं, किस लोग को रिलीफ मिले? आप चाहते हैं जो 8 एसी चला रहे हैं उसको भी रिलीफ मिले? आपको नहीं मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप 8 नहीं चला रहे, मुझे पता है साहब भी 8 एसी नहीं चलाता, मगर लोग चलाते हैं, उनको नहीं मिलेगा, उनको ये बोझ खुद उठाना पड़ेगा। ये हमारी जितनी कैपेसिटी पेमेंट आप कह रहे हैं, ये 8% लोगों की वजह से है ये कैपेसिटी पेमेंट। 8% लोग जो हैं, जो एसी चलाते हैं, उनकी वजह से हमें इजाफी बिजली लगानी पड़ती है, जिसकी कैपेसिटी गरीब आदमी पूरा साल देता। तो कितनी देर तक भाई 200 यूनिट तक प्रोटेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको पैसे देने होंगे। 200 यूनिट 86% लोग, 86% लोगों को बचाएंगे, 14% लोगों को अपना बोझ खुद उठाना होगा। सर दो सवाल हैं। एक तो ये बता रहे हैं कि जो सब सेक्टर है उसको डीरेगुलेट करने की बात है, ठीक है, तो ऑलरेडी मट्टी का तेल है वो डीरेगुलेट है 160 प्राइस है, लेकिन पब्लिक को 300 रुपए के आसपास बेच रही है। तो क्या आप समझते हैं कि इससे जो है वो एक नहीं, इस पे तो अभी कोई ऐसी चीज हुई नहीं, अभी तो बात शुरू हुई है। हमने खुद अपना प्रपोजल वजीर आजम साहब ने हमें हिदायत दी है, हमने एक प्रपोजल वजीर आजम साहब को दिया है, जिसके अंदर हमने पूरे सेक्टर को डीरेगुलेट करने का एक फ्रेमवर्क सोचने की बात की है। इनफैक्ट अब मैं करूंगा ये, जरा ये हंगामे वंगामे खत्म हो, तो असल में जो मैं करना चाहता था वो सामने की स्क्रीन पे आपको पेट्रोलियम सेक्टर की स्ट्रैटेजी दिखाना चाहता था, वो मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा जैसे हमने पहले पिछली मरतबा किया था, और मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हम डीरेगुलेट कहते हैं तो क्या कह रहे हैं। कोई फैसला नहीं हुआ, सिर्फ ये तजावीज़ वज़ीर आज़म के सामने आ रखी गई हैं, जिसपे उन्होंने हिदायत दी है कि आप इन पे आगे बढ़ें, इनका एनालिसिस करें। और वज़ीर आज़म की हिदायत है कि कोई काम जिसमें आप मुझे ये नहीं दिखा सके, चाहे वो री रेगुलेशन है या डीरेगुलेशन है या लिबरलाइजेशन है, अगर आपने मुझे ये नहीं दिखाया कि आप गरीब आदमी को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो द आंसर इज नो, बिग NO। इस वजह से जो भी इस वक्त तजावीज़ आई हैं, जिनका एनालिसिस चल रहा है, जब तक हम गरीब आदमी की प्रोटेक्शन नहीं दिखाएंगे उसमें, वजीर आजम उसको पहले से वीटो कर चुके हैं कि वो मैं अप्रूव नहीं करूंगा। तो इन पे अब हम गुफ्तगू शुरू करेंगे, आप लोगों को उसमें शरीक रखेंगे। मैंने अपने आज दरख्वास्त की है, जो हमारी टीम है, कि हर महीने जो हमारा पहले वो एक चल रहा था रिदम के, हर महीने हम बैठ के मसाइल पे भी बात करते थे, सोल्यूशंस पे भी बात करते थे, वो इस महीने से शुरू हो जाएगा। सर IMF ने जो है अभी इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान के तमाम पार्लियामेंट हैं, उन्होंने जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर जो है वो बोला, और इसमें टाइम बड़ा कम है, जनवरी तक का फ्रेमवर्क है। तो आप क्या समझते हैं, पहले बताओ मुझे कि केपी गवर्नमेंट जो है वो पॉजिटिव अपना गेस्टर दिया, जो आधार IMF ने दिए खासतौर पे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के हवाले से, वहाँ से भी पॉजिटिव बाइक थी। तो आप क्या समझते हैं जनवरी तक यार क्या मैं तो बिल्कुल ये बात ही नहीं समझता, मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती। मैं तो ये समझता हूं कि जो हमारे मुल्क के हक में हम सिर्फ वो करेंगे। मुझे आप कोई भी प्लान जो हमने एग्री किया है, उस प्लान में बताएं किस जगह पे झोल है, ताकि हम उसको ठीक करें। किसने क्या कहा है, किसने क्या बोला है, क्या सोचा है, वो ठीक है सब, लेकिन हमारा काम है, लीडरशिप का काम है कि अवाम के, और बाज़ दफ़ा हमारी जो निगोशिएशन किसी भी एक्टर से हो, ABC से, उनमें डिले होता है, वो इसी वजह से होता है कि हमने अवाम का जो नुक्ता नज़र है उसको भी प्रोटेक्ट करना होता है। जो चीज़ें हमारे अपने मुल्क के लिए बेहतर है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर के, मतलब अगर आपकी आमदन हो 100 रुपए और आपके खर्चे हो 300 रुपए के, तो कितनी देर तक जिंदा रहेंगे? कितनी देर तक बताइए? आप घर चलाते हैं सब लोग, अगर आपकी आमदन हो 50, 60, 70 हज़ार की और आपका खर्चा हो 2 लाख का, तो कितनी देर तक घर चलेगा बर्बाद होने से पहले? अब सिर्फ 2 फ्लोर्स पे, यानी Q ब्लॉक तक हम जाते हैं, मैं सिर्फ A ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। A ब्लॉक में 6 मंजिलें हैं, मैं सिर्फ 2 मंजिलों की बात कर रहा हूँ। मंजिल वो कौन सी? 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर। बिजली और गैस, 5200 बिलियन का सर्कुलर डेट इकट्ठा हो चुका है। तो ये हमें IMF या किसी और के लिए ठीक करना है? 18 बिलियन डॉलर का खप्पा है, खप्पा 18 बिलियन डॉलर का। ये हमने अपने बच्चों के लिए ठीक करना है, ये हमने अपने मुस्तकबिल के लिए ठीक करना है। अगर कोई बाहर से कहता है आपको ठीक कर लेना चाहिए, तो अच्छा कहता है, लेकिन कोई ऐसी बात करे जो हमारे
बच्चों के मुस्तकबिल के रास्ते में रुकावट हो तो नहीं माने, लेकिन कोई ऐसी बात करे जो हम खुद ही करने चले हों तो उनके लिए, किसी के लिए नहीं कर रहे भाई। हम सिर्फ जो करेंगे अपने बच्चों के लिए करें। आखिरी सवाल अगर इजाजत हो, या ये ठीक है। आदमी के पास 50,000 आया नहीं था, जब उसको उतारा गया तो हमने मेट्रो को 50,000 दिया, 2 शीशे टूटे और लोगों के अनुसार लगे, तो लोग इतना कम गए तो फिर सर क्या बताइए ना आप दें। मैंने तो आपको बताया कि 86% लोगों को प्रोटेक्ट कर लिया गया है। आप बताइए, स्टेट को भी कर लें, आप बता देना। मैंने तो आपके सामने मुकदमा रखा है कि 86%, ये पहले हमने कहा सिर्फ प्रोटेक्टेड को करेंगे, फिर हमने कहा नहीं यार, गरीब आदमी बाज दफा गर्मी में 200 से 230 तक चला जाता है, अनप्रोटेक्टेड हो जाता है, तो सबको कर लो, प्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड को, वो 86%। इस तरह के बैलेंस को हटा दीजिएगा, किसी गरीब के पास अगर नहीं है पैसे तो जी, उस पे मैं डॉक्टर साहब आपने आखिरी सवाल मुख्तार साहब, बातचीत के ऊपर करते अभी 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 मैंने वो आप सब सलीमा खान की जो बातचीत थी उसके ऊपर आपने जवाब दिया है नहीं, मैंने तो किसी चीज का जवाब नहीं दिया। मुझे अभी इन्होंने दिखाया है कि गालिबन प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी खबर आई है कि हमारे दरवाजे पहले भी खुले थे, अब भी खुले हैं, मगर ये इसका किसी एक बंदे से कोई ताल्लुक नहीं है। हम बात करना चाहते हैं। मैंने आपको पूरी इतनी लंबी तकरीर की इस वजह से कि सुलझाओ यार, उलझाओ नहीं, आप कह रहे हैं सुलझाने में भी थोड़ी सी। अरे भाई, हमारा पहली दरखास्त ये थी कि हुकूमत बना लो और खुद कर लो। कैसी अजीब बात करते हैं आप। हमने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि आपको शक है ये इलेक्शन ठीक नहीं है तो आ जाएं, हुकूमत बना ले। पीपल्स पार्टी ने कहा हम सपोर्ट करते हैं, और खुद 47-45 को ठीक कर ले, तो क्यों नहीं किया? इस वजह से नहीं किया। मकसद ये नहीं, मकसद सुलझाओ नहीं है, उलझाओ है। जो मकसद है वो फसाद है। आप जितने सर ये बताएं कि एक तरफ पीटीआई पर पाबंदी लगाने की बातें हो रही हैं और तैयारी दूसरी तरफ उनको मुलाकात की ऑफर कर रहे हैं, नहीं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। देखें, वो तो आईनी एक तरीका कार है, अगर किसी ने मुल्क के खिलाफ कोई काम नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा, और अगर किया है तो कोई इसको बचा नहीं सकता। उसमें क्या मसला है? वो तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं, कोई कह ही नहीं रहा। हमने तो ये कहा कि अगर कुछ ऐसा है जो आइन के मुताबिक नहीं है तो जो आइन में लिखा है वो होगा, और अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं होगा। बस यही हमारा। बहुत शुक्रिया।